सभ्यता पुनरुत्थान से भारत के आत्मबोध और वैश्विक भूमिका का पुनर्रचना। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। जैसे जैसे औपनिवेशिक ढांचे कमजोर पड़ते जा रहे हैं, भारत की सभ्यतागत कथा एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अगुवाई कर रही है। बात चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हो या possession and political marginalization, the war's aftermath continues to impact the lives of minorities in Bangladesh. The 1971 India-Pakistan War, also known as the Bangladesh Liberation War, was India's first decisive military victory in the past 1,000 years. It resulted in Pakistan's complete surrender, the slicing of Pakistan into two, the halving of its population, and the capture of over 93,000 Pakistan Army soldiers, marking the largest surrender in military history since World War II. But looking beyond what was unquestionably a great victory, the 13-day war remains one of the most significant and traumatic events in the history of the Indian subcontinent. The brutal conflict, which led to the independence of Bangladesh, was the culmination of decades of political and ethnic tensions between Bengali-speaking East Pakistan and Punjabi-dominated West Pakistan. For Bangladesh's Hindu minority, which suffered the most, the aftermath of the war represents an enduring struggle with a deep sense of unfinished business, one that has shaped their social, political, and economic status in the country, even to this day. For Hindus, the 1971 war was a reminder that the struggle for civilization is constant. Barely a quarter century after the post-partition riots that claimed the lives of over 1 million Hindus, the Indian Armed Forces once again had to intervene to safeguard a way of life, a culture, and a community that had endured thousands of years of invasions, colonization, and violence. In this sense, the Bangladesh conflict was not just a political or military victory. It was a victory for the survival of Hindu civilization in the Indian subcontinent. Was it a Pyrrhic victory? Yet there is a widespread feeling among many Indians that the 1971 war wasn't a victory at all. They argue that the gains made by the soldiers on the battlefield were surrendered by India's political leadership at the negotiating table. In that sense, the war's outcome was a net loss for Hindus. This is not quite true, for India's resounding victory and the Pakistan Army's spectacular collapse meant that never again would a smaller, yet more belligerent, country wage war against a much larger and powerful nation. Pakistan's dream of conquering India via war was permanently dashed. Significantly, India no longer had to maintain a military presence on its eastern borders, giving its military considerable flexibility in its operations against both Pakistan and China. Geopolitically, India became the preeminent power in the subcontinent. At the same time, India's decision not to go for Pakistan's jugular meant the victory remained incomplete. Firstly, India. स्थिति तेजी से बदली है। एक जोरदार हिंदू नवजागरण के उदय के साथ भारत अब अपनी सभ्यतागत पहचान को पुनः प्राप्त कर रहा है। अयोध्या राम मंदिर के भव्य उद्घाटन से लेकर 2025 के महाकुंभ जैसे आयोजनों में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी तक एक नया विमर्श उभरता दिख रहा है। ऐसा विमर्श जो भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान को गर्वपूर्वक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में रखता है। लेख के अगले भागों में हम यह जानेंगे कि भारत का सभ्यतागत दृष्टिकोण कैसे उसके आंतरिक ढांचे और वैश्विक भूमिका की दिशा तय कर रहा है। भारत की सभ्यतागत दृष्टि और उसकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ग्रीस, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया जैसी अनेक प्राचीनतम सभ्यताओं से भारतीय सभ्यता के तार जुड़े हुए हैं। प्राचीन ग्रीस की Did not pressure Pakistan to resolve the Kashmir border. को अपनी पार्थेनॉन मूर्तियां या एल्जिन मार्बल्स को वापस लाने में भी मदद मिल सकती है, जो इस वक्त ब्रिटिश म्यूजियम के कलेक्शन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस और क्रोएशिया की हालिया यात्राएं भी भारत की सभ्यतागत और सांस्कृतिक सोच से जुड़ी हुई हैं। भले ही ज्यादातर विश्लेषण इन दौरों को भूराजनीतिक और रणनीतिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन सभ्यतागत पहलू भी इस पूरी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। हाल ही में ऑर्गेनाइजर में छपा एक लेख भारत और साइप्रस के बीच के सभ्यतागत रिश्तों पर रोशनी डालता है।
इसमें लीला एरुलकर की दिलचस्प कहानी बताई गई है, जो कभी साइप्रस की फर्स्ट लेडी रहीं और अहमदाबाद, जिसे पहले कर्णावती कहा जाता था, में पैदा हुई थी। लीला एरुलकर एक भारतीय यहूदी परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता डॉक्टर अब्राहम एरुलकर 1946 में लंदन में महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर थे। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया साइप्रस यात्रा के सीधे तार भारत के उस संघर्ष से जुड़े हैं, जो उसने अपने सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हेतु छेड़ा है। तुर्की का पाकिस्तान को खुलकर समर्थन देना दरअसल भारत के खिलाफ सक्रिय पाकिस्तानी जिहादी मशीनरी को भी बिना शर्त समर्थन देने के बराबर ही है। ऐसे में साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर भारत का दोबारा जोर देना और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस का उसके साथ एकजुटता दिखाना सिर्फ एक रणनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि यह तो एक सभ्यतागत संवाद है, जिसका मकसद दोनों सभ्यताओं के बुनियादी मूल्यों को हिंसक और कट्टरपंथी ताकतों के हमलों से बचाना है। आज के समय में मीडिया का बोलबाला है। जो मीडिया पर दिखाई देता है, उसके बूते पर पल भर में धारणाएं बनती और बिगड़ती हैं। इसलिए ऐसे समय में संकेतों का भी अपना ही महत्व है। आपसी समझ और सम्मान की परंपरा से जुड़े छोटे छोटे व्यक्तिगत इशारे भी एक मजबूत संदेश बन जाते हैं, जो सभ्यताओं के आपसी संवाद और सांस्कृतिक मेलजोल को दर्शाते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण उस वक्त देखने को मिला, जब निकोसिया के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर एक साइप्रस के सांसद ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। यह भाव प्रदर्शन दोनों देशों के बीच के गहरे सभ्यतागत सम्मान का प्रतीक बन गया। भारत के प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक क्रोएशिया यात्रा भी सभ्यतागत दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अकादमिक शोध के क्षेत्र में क्रोएशिया मशहूर है। दुनिया की पहली प्रिंटेड संस्कृत व्याकरण की किताब क्रोएशिया के विद्वान इवान फिलिप वेज़दिन ने प्रकाशित की थी। क्रोएशिया ने भारत के सभ्यतागत लक्ष्यों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन किया है। वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता है। इसके अलावा क्रोएशिया ने भारत के आंतरिक मुद्दों जैसे जम्मू कश्मीर पर हस्तक्षेप न करने की नीति भी अपनाई है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो जोरदार स्वागत हुआ, वह पूरी दुनिया को सभ्यतागत एकजुटता का एक मजबूत संदेश देने वाला क्षण था। आज भारत की सभ्यतागत सोच न सिर्फ उसकी विदेश नीति का सक्रिय हिस्सा बनती जा रही है, बल्कि दुनिया के कई देश भारत को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके सभ्यतागत मूल्यों से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही कई बार ये कोशिशें केवल दिखावे के स्तर पर ही क्यों न हों। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 1। सभ्यतागत दृष्टिकोण भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 से उसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा रही है। इस नीति के जरिए भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। इसका मकसद प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को फिर से जीवित करना है, ताकि साझा सांस्कृतिक विरासत के आधार पर विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ रामायण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यताओं के बीच एक तरह का पुल बनकर उभरा है। रामायण के स्थानीय रूपांतरण, जैसे कंबोडिया में रामकेर, म्यांमार में यामाज़ेटडॉ, मलेशिया में हिकायत सेरी राम और थाईलैंड में रामकियन, इस बात का प्रमाण है कि यह पवित्र ग्रंथ वहां की संस्कृति में कितनी गहराई से रच बस गया है। आज भी थाईलैंड के राजा को राम कहा जाता है और उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। वायंग सरीखे पारंपरिक कठपुतली थिएटर के माध्यम से आज भी रामायण और महाभारत की कहानियां जीवंत रूप में पूरे क्षेत्र में दिखाई जाती हैं। अप्रैल में अपनी थाईलैंड यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की रामकियन, स्थानीय रामायण, का एक मंचन देखा। यह प्रस्तुति बेहद अनोखी थी क्योंकि इसमें भारत और थाईलैंड की कलाओं
और संस्कृतियों का सुंदर संगम दिखा। थाईलैंड के अनूठे खोन नृत्य और भारत के भरतनाट्यम का बेहतरीन मिश्रण। दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा का केंद्र बिंदु बनकर उभरी। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने थाईलैंड के ऐतिहासिक वाट फो मंदिर में अपनी थाई समकक्ष पैटोंगटान शिनावात्रा के साथ दर्शन किए। यह मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और रिक्लाइनिंग बुद्धा की विशाल प्रतिमा के लिए मशहूर है। प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को सम्मान देने और उन्हें उजागर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लेटे हुए बुद्ध के मंदिर रिक्लाइनिंग बुद्धा श्राइन में अशोक स्तंभ के शेरमुख लायन कैपिटल की एक प्रतिकृति भी भेंट की। इस तरह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की अनेक परंपराओं से जुड़ी साझा सभ्यतागत विरासत प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा का केंद्र बिंदु बनी। साझा घोषणा में भी भारत और थाईलैंड के बीच के गहरे सभ्यतागत, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई रिश्तों और दोनों देशों के बीच 78 सालों से चले आ रहे राजनयिक संबंधों को मान्यता दी गई। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण पूर्व एशिया भारत की वैश्विक कूटनीति में एक बेहद प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्राएं की, वहीं मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों ने भारत का दौरा किया। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भूराजनीतिक मकसद इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करना है, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक खुली, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था कायम करना है। लेकिन इस नीति का एक और पहलू भी है, जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत रिश्तों पर टिका है। ये रिश्ते एक ऐसी ताकतवर सभ्यतागत कथा गढ़ने की क्षमता रखते हैं, जो उपनिवेशवादी सोच पर आधारित यूरो केंद्रित पश्चिमी दृष्टिकोण को चुनौती दे सके। सभ्यतागत दृष्टिकोण के आधार पर भारत वैश्विक दक्षिण के साथ साझेदारी बढ़ाता हुआ पुरानी वैश्विक व्यवस्था तेजी से बिखर रही है। भले ही नई व्यवस्था के पूरी तरह से बनने में अभी काफी समय हो, लेकिन बदलाव की बुनियाद रखी जा चुकी है। इस बदलाव के केंद्र में है वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ की एकजुटता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैश्विक दक्षिण की यह साझेदारी साझा सभ्यतागत और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर खड़ी है। यह उभरती एकता भविष्य की विश्व व्यवस्था को नया आकार देने में अहम भूमिका निभाने वाली है, जहां यूरो केंद्रित वर्चस्व की जगह एक समावेशी और उपनिवेश मुक्त सोच पर आधारित व्यवस्था कायम होगी, जो वैश्विक दक्षिण की बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपराओं से प्रेरणा लेगी। पिछले एक दशक के भीतर भारत की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव यह आया है कि उसने वैश्विक दक्षिण को एक साझा आवाज देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जनवरी 2023 में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। यह एक ऐतिहासिक पहल थी, जो उन देशों को एक साझा मंच पर लाई, जिनकी विकास संबंधी चिंताएं और सांस्कृतिक रिश्ते एक समान हैं। अपनी भूमिका को और मजबूत करते हुए भारत ने 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता का इस्तेमाल वैश्विक दक्षिण की जरूरतों को प्रमुखता देने के लिए किया। इसका सबसे बड़ा नतीजा यह रहा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। यह प्रस्ताव सबसे पहले भारत ने रखा था। अतः अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया जाना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता रही। यह निर्णय वैश्विक राजनीति में भी एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। नेहरूवादी सोच ने दशकों तक भारत की सांस्कृतिक पहचान पर यूरो केंद्रित दृष्टिकोण की छाया डाल दी थी। लेकिन पिछले एक दशक में भारत की वैश्विक दृष्टि में उसके प्राचीन सभ्यतागत मूल्यों की झलक साफ दिखाई देने लगी है। भारत अब अपनी भूराजनीतिक नीतियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रहा है, ताकि दुनिया में एक सच्ची और प्रभावशाली पहचान बना सके। इसी कारण जब वह वैश्विक दक्षिण से संवाद करता है, तो भारत दोनों की साझा सभ्यतागत परंपराओं
और अनुभवों के विशाल खजाने से भरपूर प्रेरणा लेता है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के समान अनुभव। आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में समानताएं। ईसाई धर्म के आने से पहले अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की विविध धार्मिक परंपराएं हिंदू धर्म के काफी करीब थी। व्यक्ति केंद्रित सोच की जगह सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देने वाला मूल्य तंत्र। मौखिक परंपराओं का समृद्ध इतिहास और गैर पश्चिमी दृष्टिकोण की परंपरा में समृद्ध ज्ञान, कला और सांस्कृतिक परंपराओं का विशाल और बहुमूल्य भंडार। जैसे जैसे भारत वैश्विक दक्षिण को जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, व्यापार, संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद एवं विश्व शांति और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर एकजुट कर रहा है, वैसे वैसे यह याद रखना भी बेहद जरूरी है कि इन सभी चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब हम अपनी साझा सभ्यतागत विरासत और मूल्यों का सही तरह से उपयोग करें। यही सभ्यतागत दृष्टिकोण इन मुद्दों पर ठोस और टिकाऊ समाधान की कुंजी है। वैश्विक दक्षिण एक ऐसा समूह है जो अब भी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की गहरी छाप और उसके असर से जूझ रहा है। ऐसे में उसकी सभ्यतागत दृष्टि इस आकांक्षा से आकार ले रही है कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाई जाए जो उपनिवेश मुक्त मूल्यों पर आधारित हो और जहां न्याय और समानता हो। इन देशों में भारत एक ऐसा अनूठा उदाहरण है जहां विदेशी शासन के बावजूद देशी परंपराएं सिर्फ जीवित ही नहीं रहीं, बल्कि और अधिक समृद्ध होती चली गईं। भारत की यह सांस्कृतिक निरंतरता, खासकर हिंदू सभ्यता की विरासत का पुनर्जागरण, उसे एक खास ताकत देती है। इसी वजह से भारत साझा सभ्यतागत दृष्टिकोण के जरिए वैश्विक दक्षिण की एकता को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। भारत की सभ्यतागत आत्मा गढ़ रही उसकी आंतरिक पहचान भारत अपनी सभ्यतागत पहचान की रोशनी में खुद को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है और इसका असर उसकी अपनी छवि पर भी दिख रहा है। यह बदलाव भारत के उस मूल भावना की ओर लौटने का संकेत है जो उसकी सांस्कृतिक जड़ों और विरासत से गहराई से जुड़ी है। जनवरी 2024 में अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन केवल भगवान राम के जन्मस्थान का पुनर्स्थापन नहीं था, बल्कि यह हमारी सभ्यता के पुनर्जागरण का शक्तिशाली प्रतीक बनकर उभरा। यह आयोजन धर्म की अधर्म पर विजय की गूंज था, जिसने दशकों से चलाए जा रहे हिंदू विरोधी और भारत विरोधी कथानकों की पोल खोली और नवजागृति की ओर बढ़ती हुई भारतीय सभ्यता की आत्मा का एक नए सिरे से आह्वान किया। पिछले एक दशक में कुछ ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले हैं जिन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की रोशनी में एक नए सिरे से उसकी छवि गढ़ी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन, मंदिर पर्यटन का तेजी से बढ़ना, संभल की हिंदू विरासत का पुनर्जागरण, 2025 के महाकुंभ में दुनिया भर की बढ़ती दिलचस्पी, प्राचीन मंदिरों का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और भारत द्वारा अपनी सभ्यतागत विरासत के जरिए सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना। इन सभी ने मिलकर भारत की छवि को देश के भीतर और बाहर दोनों जगह नए सिरे से गढ़ा है। आज भारतीयों में अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर एक नए प्रकार के गर्व की अनुभूति है और यही गर्व धीरे धीरे दुनिया में भारत की पहचान को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहा है जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक तौर पर परिपक्व हो। भारत की अपनी छवि में आया यह बदलाव अब शासन व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। इसकी एक सशक्त मिसाल मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के समय देखने को मिली, जब अध्यक्ष की कुर्सी के पास ऐतिहासिक सेंगोल को स्थापित किया गया। सेंगोल यानी सोने का राजदंड, न्यायपूर्ण और धर्मसम्मत शासन का पारंपरिक प्रतीक है, जिसका इस्तेमाल कभी चोला राजाओं द्वारा निष्पक्ष राजकाज के संकेत के रूप में किया जाता था। आजादी के समय यह सेंगोल भारत के पहले प्रधानमंत्री को सौंपा गया था।
और अब करीब 70 साल बाद भारतीय संसद में इसकी स्थापना एक गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को दर्शाती है। यह स्थापना सांकेतिक तौर पर शक्ति के उस हस्तांतरण को दर्शाती है जिसके माध्यम से भारत औपनिवेशिक ढांचे से बाहर निकल अपने सभ्यतागत आदर्शों और धर्म आधारित मूल्यों पर टिके शासन की ओर कदम बढ़ा रहा है। 2023 में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता भारत की न्याय व्यवस्था को उपनिवेशी सोच से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस नए कानून ने अंग्रेजों के ज़माने के आपराधिक कानूनों को हटाकर हमारी अपनी सोच पर आधारित न्याय व्यवस्था की नींव रखी है। ब्रिटिश शासन ने जानबूझकर भारत पर एक ऐसा कानून थोप दिया था जो पश्चिमी मूल्यों पर आधारित था और जिसने भारत की पारंपरिक न्याय पद्धति को पीछे धकेल दिया था। इसके विपरीत भारतीय न्याय संहिता दंड, सिर्फ सजा के बजाय न्याय पर जोर देती है। यह हमारी सभ्यतागत परंपराओं की ओर लौटने का संकेत है, जहां कानून का मकसद केवल सत्ता चलाना नहीं बल्कि धर्म, सच्चाई और न्याय की रक्षा करना होता था। यह नया दृष्टिकोण हाल के वर्षों में शासन और नीतियों को प्रभावित करने वाली भारत की व्यापक सभ्यतागत पुनर्जागरण की लहर का हिस्सा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अहम सुधार हुए हैं, जहां पुरानी औपनिवेशिक परंपराओं को त्याग कर स्वदेशी परंपराओं को अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मकसद भी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाना है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपराओं और दृष्टिकोणों को शामिल किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों की सभ्यतागत पहचान को लौटाने की एक जागरूक कोशिश की जा रही है। कई शहरों और स्थानों के नाम बदले गए हैं ताकि वे उपनिवेशी धरोहर की जगह भारतीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएं। काशीतमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक प्रयासों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर उत्तर और दक्षिण के बीच के गहरे सभ्यतागत एकत्व को और मजबूत किया है। ये तमाम बदलाव मिलकर भारत की शासन नीति में एक सार्थक सभ्यतागत परिवर्तन का संकेत देते हैं। एक ऐसा समय था जब भारतीय शासन तंत्र की प्रकृति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की नकल पर आधारित थी, लेकिन अब यही शासन व्यवस्था एक नए सिरे से अपनी सभ्यतागत विरासत को फिर से अपनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। समापन हालांकि आज भारत की अपनी छवि और वैश्विक पहचान पर उसके सभ्यतागत और सांस्कृतिक विमर्श का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय समाज में औपनिवेशिक विमर्श की जो गहरी पैठ है, वह अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जहां एक ओर समाज में धार्मिक चेतना का विस्तार हुआ है और भारतीय अब अपनी सभ्यतागत विरासत को एक नए प्रकार के गर्व और आत्मसम्मान के साथ देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह बदलाव समाज के हर क्षेत्र में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए, कॉरपोरेट जगत लगातार पश्चिमी रंग में ढलता जा रहा है। इसी तरह अगर हम उपभोक्ता संस्कृति और ब्रांड की पहचान की बात करें, तो अपनी रचना, क्रियान्वयन और मार्केटिंग रणनीति में भारत के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेने वाली ब्रांड्स मुश्किल से इक्का दुक्का होंगी। भारत की तथाकथित एलीट उपभोक्ता संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा आज भी पश्चिमी रुचियों और संवेदनाओं को केंद्र में रखकर बनाया और पेश किया जा रहा है। इसलिए भारत के इस सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को पूरी तरह से साकार करने के लिए जरूरी है कि हर क्षेत्र के भारतीय अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनमोल खजाने से प्रेरणा लें। वे ऐसी सच्ची कहानियां गढ़ें और साझा करें जो वैश्विक मंच पर भारत की असली गरिमा और गौरव को उजागर करें।